Hello, Namaste, welcome. This is Bharti Rakheja and I talk about self-love. I teach self-love to the world. आज हम बात करेंगे, of course self-love के बारे में बात करेंगे, but specifically इस बात पे बात करेंगे कि how can we deal with difficult people? How to deal with difficult people? Okay, I can see that people have started joining in. So थोड़े से और लोग आ जाएं, फिर हम actually main topic start करते हैं. Meanwhile, let me tell you, those of you who are new, who do not know me, I am Bharti Rakheja. I'm a self-love coach, teaching self-love, more or less for around 21 years now. बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है और बहुत मज़े से काम कर रही हूँ. एंड आई प्लान टू कंटिन्यू वर्किंग टिल माई लास्ट ब्रेथ. ओके, थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट टुडे. सोलंकी सेज शी इज़ नॉट रिप्लाइंग कॉल्स एंड मैसेजेस. क्या बात है सोलंकी, आप नाराज़ हो हमसे? हम ऐसा बिल्कुल चाहते नहीं है कि आपके कॉल्स और मैसेजेस को रिप्लाई ना करें. So either this is a wrong window where you have put this message, or we need to look into something. So please connect back once again and let's see how we can help you. All right, I can see a lot of people joining in. Shruti, Shinde, Paddy Shinde, Dev, Uma, Devendra, Ivy Consultant, Hashneet, Mansi, Pavan, Hashneet again. Hi Hashneet. Hello everyone. Solanki, Baljit, Centaur. Okay, a few names that I am finding difficult to pronounce. मैं गलत नहीं बोलना चाहती इसलिए थोड़ा सा, but आपको भी hello. Anil Kumar जी अग्रवाल, Alia, hi and good morning each one of you. I am super glad कि आप सब लोग यहाँ present हो. और हम बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में. हम बात स्पेसिफिकली करेंगे कि हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल. सो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप किसी डिफिकल्ट पर्सन से डील कर रहे हैं इन योर पर्सनल लाइफ और इन योर प्रोफेशनल लाइफ, सो फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस हियर. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड अ वार्म नमस्ते टू ईच वन ऑफ यू. शोभा, गुड मॉर्निंग. ओके, सो here's one request कि please do not request me to make you join in this live video because it is not planned this way. I cannot just call people randomly here without any plans. अगर आप चाहते हो, आप मेरे साथ live में आना चाहते हो, तो drop me a request on Messenger. My team will look into it कि how can we have you on our live. Okay, so Rajni, good morning. All right, so here we are going to talk about how to deal with difficult people. तो पहले ये समझते हैं कि difficult लोग होते कौन है, कैसे दिखते हैं, कैसे क्या करते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो difficult हैं. Okay, I want you to type in the comments कि क्या है, कैसे हैं difficult लोग आपके लाइफ में. जो भी इंसान आपके लाइफ में difficult है, उसका one characteristic आप लिखिए. How do you know that your spouse is difficult? Or your boss is difficult, or your in-laws are difficult, or your friend is difficult. Who is that difficult person? Think about that person and write in the comments what is that one characteristic. Okay, Pavan says, I've been following you for a few months now. Very helpful post. Thank you Pavan for joining us, for staying connected with us. And I'm really grateful कि मैं आपके लिए कुछ valuable post करती हूँ और आगे भी यही कोशिश करेंगे. That's my passion, that's my purpose. Okay, if your spouse is difficult, Rajni says, I'll talk about that. He's controlling and narcissistic. Okay, हाँ, तो अब ये देखते हैं कि अच्छा, निकिता says बेचारे बनते हैं हमेशा. So let's count these characteristics. Controlling है, narcissistic है, वो खुद विक्टिम मोड में चले जाते हैं, बेचारे बन जाते हैं, बट दे आर एक्चुअली मैनिपुलेटिंग, है ना. सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं डिफिकल्ट लोगों के. दे कुड बी आर्ग्यूमेंटेटिव, बहुत बहस करते हैं, बहुत बोलते हैं, हमेशा अपना लास्ट वर्ड रखना चाहते हैं कि चाहे आप जो कुछ भी बोलो आपका ओपिनियन मायना नहीं रखता है, और हमेशा चाहते हैं कि उनके हिसाब से, उनके कंट्रोल में सब कुछ चले. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफिकल्ट पीपल. दे कैन गो मैनिपुलेटिव, दे कैन बी ओवर क्रिटिकल ऑफ यू. Yeah, so these are some of the characteristics of difficult people. Narcissistic in-laws.
ओके, सो नार्सिसिज्म एक वर्ड आता है जब हम डिफिकल्ट लोगों के बारे में बात करना शुरू करते हैं. दे आर कंट्रोलिंग, दे आर मैनिपुलेटिव, इट्स ऑल अबाउट देम, दे वांट एवरीथिंग टू बी अबाउट देम एंड एज दे वांट इट टू बी. दे आर इररिस्पॉन्सिबल एंड दे आर अनरिस्पॉन्सिबल. वो आपके सेंटिमेंट्स को नहीं समझते, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. दे आर वेरी वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज. आर वी गेटिंग इट? ऑल राइट, सो दीज आर सम ऑफ द characters. They could be disrespectful, they could be manipulative, they will not treat you like a human being sometimes. Okay, so these are the characteristics of difficult people. Now here is a beware note. Beware. कभी कभार ऐसा होता है कि एक रिलेशनशिप में, हर रिलेशनशिप में एफर्ट की जरूरत होती है, आप मानते हो, चाहे वर्क रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल हो, चाहे पर्सनल हो. हर रिलेशनशिप में काम की जरूरत होती है. ठीक है, तो हर रिलेशनशिप के ना स्टेजेस भी होते हैं. तो अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ डिफिकल्टीज हैं, अगर आपको लगता है वो इंसान डिफिकल्ट है, तो पहले एक रिफ्लेक्शन लेना जरूरी है कि हाउ एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस सिचुएशन. मेरा अपना रोल क्या है. अब आपका रोल अच्छा भी हो सकता है, तो आप चेक करो कि क्या आपने जेन्युइनली विद द राइट एनर्जीज इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है. एंड डिस्पाइट योर इन्वेस्टमेंट द रिस्पॉन्स इज नॉट कमिंग, दैट्स अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप. अगर आपने सब कुछ वो किया है जो एक रिश्ता क्लेम करता है, एफर्ट होता है जो आपने किया है, अब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, दैट पर्सन इज बीइंग अनरिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स यू. सो बेसिक रिस्पेक्ट नहीं है, बेसिक ह्यूमन कर्टसी नहीं है, हमेशा कंट्रोलिंग है, डिसरिस्पेक्टफुल है, अगर कई बार अब्यूजिव भी है, तो तब आप समझते हैं कि ये पर्सन इज डिफिकल्ट. ओके, सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू टू टेक अ रिफ्लेक्शन एंड सी how much difficulty is there in the situation, and is that person really difficult or disrespectful. So आप characteristics देख सकते हो. आप despite your efforts they are not responding to you. All right, so this is how difficult people look like. Now let us go ahead and start talking about how to deal with them. So I'm going to share 3 techniques, 3 points about how to deal with difficult people today. Right. So पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि my spouse is not understand me, does not understand me, she is egoistic. Sure. So आप देखिए, मैं आपकी अपनी विजडम पे ये ट्रस्ट करती हूँ कि आप अपनी सिचुएशन को खुद अच्छी तरह समझ के ये जनरल पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी. ओके, दीज आर नॉट स्पेसिफिकली फॉर समवन फॉर सम पर्टिकुलर सिचुएशन. नाउ यू हैव टू बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट्स में क्या विजडम है जो आपके लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, दिस इज अ जनरल प्लेटफॉर्म, मैं यहाँ 1-to-1s नहीं कर रही हूँ. तो जनरली जो मुझे पता है कि एक 3 पॉइंट्स जिसके थ्रू आप हेल्प कर सकते हो अपनी टू डील विथ डिफिकल्ट पीपल. ओके, ऑल राइट, सो लेट्स गो अहेड. सो पॉइंट नंबर 1, द वे यू कैन डील विथ डिफिकल्ट पीपल इज फर्स्ट कंट्रोलिंग योर इमोशंस. जनरली क्या होता है, अपनी सिचुएशन देखिए. इफ यू आर डीलिंग विद वन abusive or toxic or difficult person in your personal or professional life, आपके इमोशनल रिएक्शंस आते हैं. आपको गुस्सा आता है, आपको एंजाइटी होती है, आप रिएक्टिव हो जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और एग्रेशन में वो पेन कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो आपका इमोशनल कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता. छोटी सी बात पे बड़ा सा रिएक्शन दे देते हो, क्योंकि वो उसके रीजंस होते हैं, बिकॉज वी हैव बीन पाइलिंग अप ऑन द पेन एंड हर्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो अब एक पॉइंट आ जाता है जब हमारी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, तो कोई भी छोटा सा ट्रिगर है, छोटा सा स्टिमुलस है, उसका बड़ा सा रिस्पॉन्स आ जाता है. ऐसा होता है. टाइप गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट्स अगर ऐसा आपके साथ होता है. तो आप इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, अग्रेसिव हो जाते हो, पैसिव अग्रेशन हो जाता है, बात नहीं करना चाहते हो, साइलेंट मोड में चले जाते हो, अवॉइड करते हो आई कॉन्टैक्ट, अवॉइड करते हो उनसे बात करना. अगर ऐसा होता है तो वी अंडरस्टैंड दिस एज इमोशनल रिएक्शन. अब आप अपने आप से पूछो कि ये इमोशनल रिएक्शंस देके फायदा क्या हो रहा है. क्या फायदा हो रहा है इमोशनल रिएक्शंस देके? चाहे वो रोना हो, चाहे एग्रेशन हो, चाहे ओवर अपोलोजाइजिंग हो, ये सब इमोशनल रिएक्शंस हैं. इससे हो क्या रहा है, फायदा क्या हो रहा है? अगर फायदा नहीं हो रहा है, अब आप अपने आप से पूछो नुकसान क्या हो रहा है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी एंड अप ब्लेयरिंग अप द सिचुएशन इवन फर्दर. जितना नुकसान होना था उससे ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि हम
चाहते तो ये थे कि हम उनको बताएं कि हम कैसा फील करते हैं, बट हमने ये प्रोडक्टिवली नहीं किया, कंस्ट्रक्टिवली नहीं किया, तो ये डिस्ट्रक्टिव वे में बाहर आ गया। फिर क्या होता है, हमारा पीस, मेंटल पीस और खराब होता है। हमारा मेंटल पीस खराब हुआ, हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं विद द वंस, विद आवर प्रेशियस वंस ऑल्सो, राइट। हम फिर भी उस स्पेस में चले जाते हैं ऑफ मोर एंजाइटी, क्योंकि हमने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया जिसकी वजह से हम खुद और एंग्शियस हो जाते हैं। ओ मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मैंने गलत तो नहीं कर दिया। फिर आप ओवर करेक्शन मोड में चले जाते हो, ओवर गिविंग मोड में चले जाते हो, ओवर प्लीजिंग मोड में चले जाते हो। Okay, give me a heart if this sounds true for you. Give me a heart in the comments if this sounds true for you. Yeah. अब ये किसी का comment गया है. What if they make me feel like a purchased toy? I'm talking about that, Shruti. कोई भी इंसान अगर आपको मिसट्रीट करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, they make you feel unseen, unheard, as if you are not alive, as if you are not there. Okay, they treat you when they need you, they welcome you when they need you, they abuse you. आपका फायदा उठाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और उसके बाद आपको छोड़ देते हैं। आपकी नीड्स, आपके डिजायर्स, आपकी रिस्पेक्ट से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। When you feel as if you are treated like a purchased toy, you have options. You have options. So number one option I'm giving you is, number one step is that have emotional control. How to have emotional control is training and practice. So कैसे हो सकता है emotional control? बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो मैं सिखाती हूँ अपनी क्लासेस में फॉर इमोशनल कंट्रोल। वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस द पॉज। प्रैक्टिस द पॉज। जैसे किसी ने कुछ कहा, बिफोर यू रिएक्ट, यू टेक वन ब्रेथ एंड बिकम अवेयर, देन प्लान एंड रिस्पॉन्ड। प्लान एंड रिस्पॉन्ड। अभी बहुत सारे सुनने वालों को ये लगेगा कि इट्स easier said than done. Yes, it is easier said than done. But is it possible? Of course it is possible. Because I have practiced it, I have learned it. And I have been teaching this to thousands of people over the years. It is possible. कैसे practice करें? Practice the pause. जैसे छोटी चीजों में पहले ट्राई करते हैं। जैसे फोन बजता है तो आपका सडन रिएक्शन क्या होता है? फटाफट फोन उठाते हो, नोटिफिकेशन है, चेक करते हो, फटाफट जवाब देने की कोशिश करते हो। ये हमारा बॉडी का नेचुरल एक रिस्पॉन्स हो गया, जो कि नेचुरल नहीं है, ये रिएक्शन है। घंटी बजती है, डोरबेल बजती है, फटाफट भागते हो देखने के लिए कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। होल्ड करना नहीं आता है अपने आप को। तो ये दो सिचुएशंस में कम से कम हम प्रैक्टिस कर सकते हैं पॉज की। दैट जैसे ही फोन बजा, आई टेक वन ब्रेथ फर्स्ट, become aware of the present moment, then I pick up the phone and then I decide whether or not I want to pick up the phone, whether or not I want to reply to that email or message on WhatsApp. This is practicing the pause with awareness. With the phone, same. When the doorbell rings, take a breath and then decide who goes to open the door or who doesn't go. You want to go, you go. You don't want to go, don't go. Somebody will take care of it. So मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ। मैं अपनी मीटिंग्स में होती हूँ, मैं अपने सेशंस में होती हूँ। अभी मेरा लाइव चल रहा है, अगर अभी डोरबेल बजी तो माई इनर इंस्टिंक्ट विल वांट मी टू रन देयर एंड सी हु हैज कम। कोई डिलीवरी तो नहीं आई, कोई काम तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं हो रहा है। लेकिन आई विल ब्रीथ एंड आई विल कीप माई सेल्फ हियर प्रेजेंट विथ यू एंड आई विल ट्रस्ट दैट somebody else will take care of it. Making sense everyone? Type MS in the comments. Is it making sense? Practice the pause. अब practice the pause करने से क्या होगा? Thank you for all your hearts. Practice the pause करने से क्या होगा? जब भी किसी ने आपको कुछ गलत बोला है या गलत किया है तो आपका रिएक्शन नहीं आएगा, आप ब्रीदिंग मोड में जाओगे, you will become aware of yourself and only then you will come out with your response. क्योंकि आपने देखा है आपके रिएक्शन से नुकसान ज्यादा हो रहा है और फायदा कम हो रहा है। What is you are alone? What if you are alone? You are alone, तो alone, फिर तो कोई है ही नहीं difficult people around you, but ऐसा होता नहीं है ना। हम alone नहीं होते, हम जितना मर्जी कुछ भी कर ले, हम alone रह ही नहीं सकते। We are social animals, we are social beings. So हम फैमिली में रहेंगे, किसी पार्टनर के साथ रहेंगे, स्पाउस के साथ रहेंगे, काम पे जाएंगे तो वहाँ बॉस होगा या कस्टमर्स होंगे। Even if you are your own boss, you have to deal with people, employees, your customers, etc. etc. So we are never alone. अगर आप अलोन हो तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं है टॉक्सिक लोगों की या अब्यूजिव लोगों की। ओके,
If that makes sense, type MS in the comment. Thank you so much for your comments. All right. So this is the first point. Maintain emotional control. One of the techniques to maintain emotional control is practice the pause. Okay, right. Thank you. Then you can, of course, there are, as I said, there are a lot of tools and techniques to teach you emotional control, but practice the pause is one of the very, very powerful ways. Then second is mindfulness. A very, very powerful tool to practice emotional control is mindfulness. Practice mindfulness every day. How do we practice mindfulness? There are a lot of mindfulness videos on my YouTube channel. You can go check them there. Mindfulness को practice करने का concept ऐसा है कि you bring yourself in the present moment. Okay? हमारे thoughts जो 60,000 thoughts, जैसे कि कुछ researchers कहते हैं, 60,000 thoughts in a day we think. 99.9% thoughts are either future or past thoughts. They are either future thoughts or past thoughts. Mindfulness helps us to bring our thoughts to the present moment, because present moment में कोई thoughts नहीं होते. Present moment में जब आप आ जाते हो सिर्फ ये thoughts होंगे, फैन चल रहा है, टेम्परेचर सही है एसी का, बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आई एम ब्रीदिंग, माई हार्ट इज़ बीटिंग. This is practicing the present moment. Whatever you are doing right now, I'm in the present moment, I'm reading your texts, I'm watching myself on the screen, and I'm speaking about what I'm speaking. I am being in the present moment. I'm not thinking about what's happening outside. I'm not thinking about lunch में क्या बनेगा. I'm not thinking about कल हमें function में जाना है तो मैं क्या पहनूंगी. I'm right here, right now. Practice being right here, right now. As I said, I cannot allow you to be in my live video randomly, so you have to send in your request to me. My team will look into it, that what is your reason for wanting to be in my live. Okay, now that's the thing. Practice mindfulness. The more you practice mindfulness, the less reactive you would be. The more you practice mindfulness, the less reactive you would be. All right, so be here and be in the now. 2 techniques I taught you today. 1, practice the pause. 2, practice the pause. 2 is mindfulness. Okay, practice mindfulness. Now coming to the second point of the 3 points on how to deal with difficult people. Second one is set clear boundaries. अब आपको पता है कि आपके इन-लॉज डिफिकल्ट हैं, या स्पाउस डिफिकल्ट है, या बॉस डिफिकल्ट है, या बच्चा डिफिकल्ट है. ओके, कई बार बच्चे भी डिफिकल्ट होते हैं या फिर कोई फ्रेंड या कोई सोशल मेंबर या रिलेटिव डिफिकल्ट है. यू वांट टू बिकम अवेयर. You want to become aware of what bothers you, what about them particularly bothers you. कि वो आर्ग्यूमेंटेटिव है, ये बॉदर करता है, या वो आपको निगलेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं. क्या एग्जैक्टली आपको बॉदर करता है, या आपको मैनिपुलेट करते हैं, या आपको कई बार ऐसा लगता है कि ओह मेरा फायदा उठाया गया. आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरा फायदा उठाया गया और मुझे पता भी नहीं चला, और अब मुझे पता चला तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट मैं कुछ कह नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती. तो अगर आपकी सिचुएशन आपको पता है, बिकम अवेयर ऑफ व्हाट एक्चुअली बॉदर्स यू अबाउट देम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट यू वांट टू सेट योर बाउंड्रीज. सो फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस वन पर्सन, वन क्लाइंट ऑफ माइन. शी वॉज फ्रेंड्स विद, she became a little friendly with a colleague at workplace. Now this colleague used to come way closer physically while he was interacting with this woman, and she would get very, very uncomfortable. ठीक है, and when she spoke to me about this situation, she was in the space of very low self-esteem, so she could not directly tell that person to just move away and maintain your distance. वो नहीं बोल पाई. अब वो परेशान होती रही अंदर से और एंग्शियस हो जाती थी whenever he would approach her to talk. She could not avoid him because वो वर्क प्लेस पे रोज मिलता था, लेकिन वो हमेशा डिफिकल्ट फील करती थी when he would get extremely close to her while talking. Now when we discussed, I taught her physical boundaries. Physical boundaries. So the best way to establish physical boundaries is when that person comes closer to you, you walk 2 steps away. Generally 1 arm distance
is what your private space is. One arm distance on all sides is what your private space is. You would allow only those people very close to you to enter this personal space. So we set physical boundaries. Okay? जिसके साथ आपको बहुत close नहीं आना है, आप उसको in your word and action you can say that, or you can express it through your actions that you are not comfortable coming so close to that person. She started practicing it, but he could not understand. So she dropped her fears then, and then went ahead to tell him that I would appreciate if you can stand at this much of a distance and talk to me. She went ahead and said that to him, and then he understood and he had to apply it. It is you who need to establish physical definition. धीरू सिंह, मैं डेफिनेशन में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन में बिलीव करती हूँ जो मैं कर रही हूँ. फिजिकल बाउंड्री इज द फिजिकल स्पेस अराउंड यू. अगर उसके बियॉन्ड कोई आता है तो आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो, दैट्स योर फिजिकल बाउंड्री. आई होप दैट मेक सेंस. और कैसे फिजिकल बाउंड्री एस्टैब्लिश करनी है, पहले तो खुद को पता करना है ना, अवेयरनेस में रहना है कि व्हाट इज माय फिजिकल बाउंड्री, एंड देन यू हैव टू कम्युनिकेट इट टू द अदर पर्सन. दिस इज फिजिकल बाउंड्री. Similarly, we can set emotional boundaries. Emotional boundaries. आपका ये कहने से मुझे ये इमोशन आता है, जब आपने ये कहा, ये किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा. पहले खुद को बताना है, खुद की अवेयरनेस में लाना है. When you become aware of your boundaries, then it is equally important to communicate the boundary to the other person. That whenever you say something like this or you do something like this, I do not appreciate it because I feel disrespected, I feel unappreciated, I feel unacknowledged. ठीक है? तो ये आपको अवेयरनेस से पता चलेगा कि आपकी फिजिकल बाउंड्रीज, इमोशनल बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन यू हैव टू कम्युनिकेट दैट बाउंड्री टू द अदर पर्सन. नाउ कीपिंग इन माइंड कि जब आप कम्युनिकेट करोगे जरूरी नहीं है वो समझे. वो डिफिकल्ट पर्सन है ना, टॉक्सिक पर्सन है ना, तो जरूरी नहीं है वो समझे. बट पॉइंट ये है कि आपको कम्युनिकेट करना है. वो नहीं समझेंगे तब सोचेंगे क्या करना है, बट कम्युनिकेट तो करो. प्रॉब्लम ही वहां है कि हम कम्युनिकेट ही नहीं करते और हम एक्सपेक्ट करते हैं वो खुद समझ जाए. वो खुद नहीं समझेंगे, वो डिफिकल्ट लोग हैं. इज इट मेकिंग सेंस? इफ एनीथिंग इज मेकिंग सेंस, गिव मी अ रेड हार्ट इन द कमेंट्स. गिव मी अ रेड हार्ट इन द कमेंट्स इफ इट इज मेकिंग सेंस. आर यू लर्निंग समथिंग हियर? किसी ने कहा है मैम जब किसी को अपना मान लो वो फिर अपना रंग दिखाना शुरू करता है तब दुख होता है. आई अंडरस्टैंड धीरू जी कि जब आप किसी को अपना मान लेते हो, आप वल्नरेबल हो जाते हो, आप क्लोज चले जाते हो और फिर वो अपना ट्रू कलर्स दिखाता है. जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है ये, जनरलाइज नहीं करना चाहिए. आपके साथ ही एक्सपीरियंस हुआ, आई अंडरस्टैंड, बट डोंट मेक इट अ बिलीव फॉर योरसेल्फ आल्सो धीरू. क्योंकि जब आप ये बिलीव कैरी करते हो तो आपको सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो आपके बिलीव को कंफर्म करते हैं. ठीक है? सो हम क्या कहते हैं, हम जनरलाइज नहीं करते हैं, हम सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट बात करते हैं कि ये इंसान, जब मैंने इस पे ट्रस्ट किया तो इन्होंने अपने ट्रू कलर्स दिखाए. दैट्स इट, एंड यू क्लोज देयर. नाउ यू वांट टू लर्न हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ अ पर्सन. जब उन्होंने अपने ट्रू कलर्स दिखाए तो आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है. डू यू वांट टू पार्ट वेज विद दैट पर्सन और डू यू वांट टू क्लियर सर्टेन थिंग्स विद दैट पर्सन. आपको दो ही चीजें कर सकते हो. आप उसको क्लैरिफाई करो, कम्युनिकेट करो, सो दैट वो गलतियां दोबारा ना करे. और या फिर अगर आपको लग रहा है आपने बहुत टाइम से ट्राई किया बट नहीं वर्क कर रहा है, तो देन यू द ओनली वे इज टू मेंटेन योर डिस्टेंस विद दैट पर्सन, विद दैट टॉक्सिक पर्सन इफ यू कैन. यू हैव टू लुक एट योर ऑप्शंस. आपके क्या क्या ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको एक्शन लेना है. ठीक है? डज दैट मेक सेंस? थैंक यू फॉर ऑल योर हार्ट्स. बट बहुत कम लोग इंटरैक्ट करें. आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू इंटरैक्ट विद मी. यही तो पर्पज होता है ना लाइफ का. पर्पज यही होता है ना कि हम एक दूसरे से बात करें. ओके, थ्रू द चैट बॉक्स. नाउ दो चीजें मैंने बताई आपको, सेट क्लियर बाउंड्रीज, फिजिकल बाउंड्रीज एंड इमोशनल बाउंड्रीज. देयर आर अदर बाउंड्रीज ऑल्सो, बट वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बाउंड्रीज टुडे. तो ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया. सेट योर फिजिकल बाउंड्रीज, सेट योर इमोशनल बाउंड्रीज, एंड देन कम्युनिकेट योर बाउंड्रीज टू द अदर पर्सन. कम्युनिकेट योर बाउंड्रीज. अगर आप बताओगे नहीं तो फिर फायदा नहीं है, फिर बाउंड्री सेट हुई नहीं. ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए. फर्स्ट पॉइंट था मेंटेन इमोशनल कंट्रोल, रिस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट. एंड नंबर 2 इज सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड कम्युनिकेट देम. थर्ड पॉइंट इज practice observation and active listening.
practice, observation and active listening. धीरू कह रहे हैं कि मैम कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंगली काम नहीं होता है, हमेशा हमारे पास एक चॉइस होती है, हमेशा होती है, बट हम वो चॉइस क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारे फियर्स होते हैं। आप अपने फियर्स पे काम करो, चॉइस आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर आप अवेयरनेस में आते हो कि नहीं, अगर मैंने एक्शन लिया तो मेरा नुकसान ज्यादा है, तो देन इट ओनली मीन्स कि आप चूज कर रहे हो ये एक्शन लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये लगता है कि अगर मैंने इस इंसान से दूरी बना ली तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, तो आप अवेयरनेस से आप वापस कंटिन्यू कर रहे हो ना उनके साथ रिलेशनशिप, तो आप विक्टिम नहीं हो। देन यू कैन नॉट प्ले अ विक्टिम, यू हैव टू से दिस टू योरसेल्फ, आई चूज टू बी विद दिस पर्सन, आई refuse to make the other choice and I choose to be with this person for the next phase of my life. तो आप फिर आप victim नहीं हो, ठीक है? Okay. Rajni says he becomes defensive. Who becomes defensive? How do you communicate? So Rajni, how do you communicate? This is how you communicate. Use assertiveness in your communication. Aggression से बात बिगड़ जाती है. Well, thank you for asking this question. Yes, Pawan. फियर्स इज द पॉइंट। आप अपने फियर्स पे काम करो तो आपको ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे। हम फियरफुल होके ना फिर हमारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, ठीक है? सो रजनी, दिस इज टू आंसर योर क्वेश्चन, हाउ डू यू कम्युनिकेट? Two ways to or rather there are several ways to communicate, but let us focus on 3 ways to communicate. You can communicate with silence. All of you agree we can communicate with silence? Yes? Second, you can communicate with emotions. एग्रेशन में जाके, पेन में जाके, क्राई करके, रोना करके, सैड होके, आप इस तरह से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, कम्युनिकेट थ्रू योर इमोशंस। एंड थर्ड इज यू कम्युनिकेट विद असर्टिवनेस, यू कम्युनिकेट विद असर्टिवनेस, यू कम्युनिकेट विद असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या? व्हेन यू आर नॉट इमोशनल, when your emotions are sorted, you're not angry, you're not sad, you're not hurt, you're not crying, you gather yourself with poise and grace, you collect the words exactly how you want to speak, you go ahead and speak to that person maintaining your respect and so when you can keep your grace, self-respect, and you can come up with respect for the other person, you will communicate with assertion, means your voice is loud enough to be heard. Now this is not being assertive कि जब आप ऐसा बोलते हो ना मुझे बहुत बुरा लगता है, आपने बोला और किसी ने सुना भी नहीं। No, जब आप इस तरह से मुझसे बात करते हो rudely, I feel very hurt and I do not appreciate this. That sounds like assertiveness. Yes. Right? So Rajni says I'm trying to be assertive. Yes Rajni, it's a journey. So हम practice करते हैं, हम falter करते हैं, हम फिर से practice करते हैं. Okay? So this is the learning phase for us. So Pushpendra कह रहे हैं कि so many things I want to share with you ma'am in a personal platform, kindly suggest me what should I do. Pushpendra, drop me a message on Messenger, my team will give you a link. All right, and you can fill up that link, your details, submit it to me, and then the team will connect with you and help you with the personal session slot. Okay, does that make sense Pushpendra? आप reach out करो, हम आपको reach back करेंगे और आपके लिए personal slot arrange करेंगे. That brings me to the third point, which is practice active listening and observation. ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? ऐसे हो सकती हैं जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो उस इंसान के साथ, ब्रिंग ऑल योर सेंसेस टुगेदर एंड ऑब्जर्व दैट पर्सन, उनके हाव भाव, फेशियल जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, मूवमेंट ऑफ द आईज, आईब्राउज, ये सब कुछ नोटिस करो. एंड एक्टिव लिसनिंग, वट एवर दे आर सेइंग, become curious to understand the real meaning. Stay curious. When you stay curious, आपको दिमाग में questions आएंगे और आप उनसे questions पूछो. Sure रजनी, also messenger पे आप message करो, आपके लिए personal session का arrangement करते हैं, ठीक है? I elaborate my point once again. Practice observation and active listening by bringing all your senses together while having a
talk with this person. जो भी difficult person है आपके life में, जब आप उनसे बात करो, उनके facial gestures को पढ़ने की कोशिश करो, आपको बहुत सारे signals मिलेंगे. And second, active listening. आप उनकी बात को ध्यान से सुनो और right questions पूछो. Active listening means you are listening and you are trying to absorb what that person is saying. तो जब आपको questions आएंगे, आप उनसे वो पूछो. ठीक है, जब आप क्वेश्चंस पूछोगे, दैट पर्सन विल हैव टू कम अप विद द जेन्युइन आंसर्स एंड देयर यू अंडरस्टैंड दैट दे आर मैनिपुलेटिंग यू. दिस इज हाउ वी डील विथ डिफिकल्ट पीपल. जस्ट लाइक अ लॉयर. जैसे लॉयर कोर्ट रूम में तो बहुत एग्रेसिव होना पड़ता है उनको. यहाँ पे हम असर्टिवली क्वेश्चंस पूछेंगे, नॉट एग्रेसिवली. हम रोएंगे नहीं, हम परेशान होके बात नहीं करेंगे, बट हम फुल असर्टिवनेस से और अवेयरनेस से बात करेंगे. So when you stay curious in a conversation, you will have a lot of questions in your mind. Go ahead, ask them those questions. And this is how we discuss or we talk or have a conversation with a difficult person. So 3 ways to deal with a difficult person. Number 1, maintain your emotional control. Number 2, set clear boundaries. Use assertiveness to communicate the boundaries. And number 3, practice observation and active listening. Okay. Somebody says, Nikita says, वो तो sweet ही नहीं. उठकर घर से बाहर चले जाते या फोन पर किसी से बात करने लगते. So this is how they are avoiding you. They are avoiding your confrontation. You have to figure out a way to connect again with them. See whatever you can do to connect back with them and communicate your side to them. Okay, Nikita? Right. Then we have how to respond to the wrong behavior towards you. Shruti, with assertiveness. Decide your boundary. कि कौन सा behavior है जो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे. कौन सा behavior है जो आप negotiate कर सकते हो. Disrespect, हाथ उठाना, manipulate करना, यह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए आपको, है ना. नहीं करोगे तो जो आपको हर्ट फील कराता है वो बिहेवियर आप बर्दाश्त नहीं करोगे, तो आप जाके उनको कम्युनिकेट करोगे. दिस इज हाउ यू डील विद इट. एंड देन सेट द कॉन्सिक्वेंसेज. अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, देन यू हैव टू गो अहेड एंड डू समथिंग एल्स फॉर देम, फॉर योरसेल्फ. ऑलराइट. सो दिस इज हाउ यू डील विद, रिस्पॉन्ड टू देयर रॉन्ग बिहेवियर विथ यू. आपको सबसे पहले इनर वर्क करना है कि ताकि आपके जो फियर्स है कॉन्सिक्वेंसेस को लेके, जैसे एक फियर जो विमेन का मोस्टली होता है वो ये होता है कि इफ आई साउंड रूड, if I go ahead and tell my side to confront my mother-in-law, or if I have to take this action to separate myself from her, go away and live somewhere else, then what will people think of me? So you have to get over this people-pleasing mode, thinking what others will think about you. You have to get over this, understand your story, your state, and then take a decision for yourself without any fear. So as I said, work on your fears. Only then you'll be able to deal with this difficult person. Alright, chalo. Before we close, let's do a quick exercise, and let me tell you that we are having the webinar on self-love this Sunday at 10:30. At 10:30 a.m. It's a 2 hours webinar. The link is in the bio, and you can go ahead, check that link, register yourself for the webinar and join in. I'm going to teach you the ABC of self-love. हम बहुत सारे myths bust करते हैं वहाँ पर कि self-love के बारे में जो myths हैं, मिथ्याएं हैं लोगों के मन में, वो bust करते हैं. Then there are mistakes that people make while learning self-love. हम वो सीखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद हम ABC ऑफ सेल्फ लव सीखते हैं कि कैसे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या हैं सेल्फ लव के. Okay, it's a power-packed webinar, a lot of exercises, a lot of engagement there. So I would like you to be there to know more about self-love. If you are somebody who is low on self-love, means that you have to deal with difficult people and you don't know how to, then you have to establish love for yourself, my dear friend, and for that you can join our webinar, which is happening on Sunday. The link is in the bio, or you can reach out to us on Messenger. The link is there in the bio for the webinar. Click on that link, submit your details, and you'll be taken to a WhatsApp group where you will get the Zoom link for Sunday's webinar, tomorrow's webinar. Okay. Pavan Bajaj, what if your child is used to exploit you? Pavan, nobody in this world can exploit you without your consent, even your children.
ऑफ कोर्स एनीबडी कैन एक्सप्लॉइट यू, ठीक है, कोई भी कर सकता है. बच्चे करते हैं तो हर्ट ज्यादा होता है, स्पाउस करते हैं तो हर्ट होता है, लेकिन कोई भी आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकता है, बट वो एक्सप्लॉइट करेगा तभी जब आप उसको अलाउ करोगे. अगर आप इस अवेयरनेस में हो कि कोई भी आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आपको इस अवेयरनेस को यूज करना है, बाउंड्री सेट करना है, कम्युनिकेट करना है, उनको बताना है कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग एंड अलाउ देम टू शेयर देयर साइड विथ यू. हो सकता है वो आपको एक्सप्लेन कर पाए कि आपको ऐसा लग रहा है, शायद ये ठीक नहीं है. और अगर ये सही है कि वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, देन यू हैव टू डिसाइड स्ट्रैटेजीज टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ. ओके पवन बजाज, आई होप दैट हेल्प्स यू. ठीक है, ओके सॉरी. सो पवन बजाज, आपका चाइल्ड आपको यूज नहीं करता है, मैनिपुलेट नहीं करता है, बट किसी का कर सकता है, श्योर. ओके, सो फॉर दैट थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. एक 2 मिनट्स की माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कर लेते हैं. आई थिंक दिस इज गोइंग टू पुट यू टू रेस्ट. ओके, सो बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स. सेंटर योरसेल्फ विद इन एंड जेंटली क्लोज योर आईज. अलाउ योर स्पाइन टू बी स्ट्रेट, इरेक्ट. अपने आप के साथ कनेक्ट करिए विथ योर ब्रेथ. स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल. And for the next few seconds, using the power of your will, disconnect yourself from all the sounds in the surroundings and simply focus on your breath. Observe that your thoughts are slowing down. Every time you see yourself following some thought or the other, bring yourself lovingly back to your breath. Just stay. Back to your breath. Back to your breath. Back to your breath. Back to your breath. And with the next breath, come back to awareness, gently open your eyes and smile. What was your experience? I'm closing the live now and I would like you to drop in the comments how was your experience today in this live. Okay, give me one word about your experience and I'll see you next week in another live. Until then, love yourself. Your world begins with you. Namaste.